اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے میں ان کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں اور رجوری کی عوام سے چند ایک بات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ساتھیوں، ہمارا آج یہاں پہ آنے کا مطلب صرف 2-3 چیزیں ہیں۔ میں جموں یعنی کہ ڈسٹرکٹ سانبا کا رہنے والا آپ کی قوم کا ایک نوجوان ہوں۔ ہم وہاں پہ 2% یا 3% کی آبادی میں ہیں۔ ہم ہمیشہ ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنے رجوری کے ایک بھائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پونچھ کے ایک بھائی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ظلم و ستم ہوا تو راجوری میں میرا بھائی آواز اٹھائے گا، اگر مجھ پہ کوئی ظلم ہوا، میری بہن کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو پونچھ کے اندر میرا ایک بھائی آواز بلند کرے گا۔ اس لیے آپ سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کے مشکور اور شکر گزار ہیں۔ ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں چند بہت اہم نقطے ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں رجوری کی عوام کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ایسے نمائندے کو چن کے بھیجا جنہوں نے پوری ریاست کے خانہ بدوشوں کی، پوری ریاست کے ٹرائبز کی نمائندگی کرتے ہوئے دا فارسٹ رائٹ ایکٹ بل جو ہے 2018 کا اسمبلی کے اندر جمع کروایا اور اس کے اوپر بحث بھی کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا اس لیے مشکور ہوں کہ آپ نے ایسے نمائندے کو چنا، اس نمائندے کو بھی سلوٹ اور آپ سارے لوگوں کو بھی سیلیوٹ۔ ساتھیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کٹھوعہ کے اندر جو اہم باتیں ہیں، کٹھوعہ کے اندر چھتر شاہ نام کی ایک قبرستان ہے جس کا 74 کنال زمین کا رقبہ ہوا کرتا تھا۔ آج اس زمین، اس قبرستان کے اوپر 3 سٹون کریشرز چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں وہ سٹون کریشرز کس کے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا سٹون کریشر اس ریاستی گورنمنٹ کے اندر ایک وزیر چودھری لال سنگھ کا خود کا وہاں پہ چل رہا ہے۔ لال سنگھ ہائے ہائے، لال سنگھ ہائے ہائے۔ اور دوسرا سٹون کریشر اس کے چھوٹا بھائی جس کا نام ببی ہے، اس کا سٹون کریشر چل رہا ہے۔ اور تیسرا سٹون کریشر کٹھوعہ سے نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ جیت شرما، اس کا سٹون کریشر بھی چھتر شاہ قبرستان کے اوپر چل رہا ہے۔ ساتھیوں، ارے جھجر کوٹلی کے اندر ایک بی جے پی کے لیڈر نے قبرستان کو پاخانے کا کام لینے کا کام شروع کر دیا ہے۔ 50-60 کے قریب اس نے نوکر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو باتھ روم کرنے کے لیے قبرستان بھیجتا ہے۔ جموں کے اندر سلیکٹیو ایوکشن کا کام چل رہا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کے بھائی بیٹھے ہوں گے، جہاں جہاں پہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہیں پہ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تلوار گرے گی۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جانوروں کو بچانے کے لیے، کتوں کو بچانے کے لیے بہت سارے قانون ہیں، لیکن خانہ بدوش طبقہ جو ہے، آپ کا خانہ بدوش طبقہ، ان کے لیے اس ریاست میں کوئی قانون نہیں۔ فارسٹ رائٹ ایکٹ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آئین ہند ہمیں حقوق دیتا ہے، لیکن ریاست میں انہوں نے آج تک فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لاگو نہیں کیا اور بہانہ یہ دیتے ہیں کہ ریاست کے اندر 370 ہے۔ میں باشعور عوام جو ہے راجوری کی، آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ جب جی ایس ٹی لگانا تھا تب 370 آپ کو کیوں نہیں نظر آیا؟ تعلیم چودھری زندہ باد، تعلیم چودھری زندہ باد۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ رحمان، جیسے ہمارے گفتار بھائی ہیں، باقی ان کے ساتھی ہیں، میں نام نہیں جانتا، ہمارے بیچ میں ایڈوکیٹ کاظم ڈار صاحب ہیں، ذیشان کاظمی صاحب ہیں پونچھ سے، تمام ایڈوکیٹ ظہیر بھائی اور باقی ان کے سارے ساتھی، ہمیں اس چیز کا پورا علم ہے۔ جب ہم جموں کے اندر جنگلوں سے جب ہماری ماں بیٹیوں کو گھسیٹ کے مارا اور نکالا گیا
एक चीज समझने की जरूरत है मेरे साथियों, जब से ये बीजेपी सरकार जो है सरकार के साथ शामिल होकर हुकूमत में आई है, इन्होंने मुसलमानों को सुबह जम्मू के मुसलमानों पे एक टैग लगाने की कोशिश की है। दे ब्रांडेड यू एज द लैंड ग्रैबर्स। जमीनों पे जबरन कब्जे किए हुए हैं। हम ये डिमांड करते हैं, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिमांड करती है कि ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, हमने कब्जे किए होंगे, लेकिन आपके पास फैक्ट्स कितने हैं? हम ये डिमांड करते हैं कि एक जुडिशियल या एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जंगलात की जमीन, खालसा सरकार की जमीन और जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, किस किस के पास कितनी कितनी है, मेरे पास कितनी है, दूसरी कौम के लोगों के पास कितनी है, सियासी लोगों के पास कितनी है, और खुद फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह साहब के पास कितनी है। और दूसरा जो चौधरी साहब ने काम शुरू किया, हमारी जो डिमांड्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले भाइयों, हमने ये कदम चाहिए जम्मू के अंदर, गुफ्तार साहब और ये सारे लोग मौजूद थे वहां पे, कि जब तक रियासत के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं होता और हमारी जायज डिमांड नहीं, जो जायज डिमांड से पूरी नहीं होती, खुदा की कसम मैं जूते नहीं पहनूंगा। और कल पुंछ के अंदर जाना है, रजौरी का तो बहुत मौसम बहुत अच्छा है, कल पुंछ के अंदर जाना है, वहां पे भी ऐसे जाएंगे। पूरे सुबह जम्मू के सारे अजला का दौरा करना है, उसके बाद कश्मीर में बर्फ में जाना है, इंशाअल्लाह उल अजीज नंगे पैरों जाना है। और मैं नंगे पैरों रजौरी की आवाम के पास इसलिए आया हूँ, मैं रजौरी की आवाम के पास नंगे पैरों इसलिए आया हूँ अपने साथियों के साथ कि हमारे यहाँ एक यकीन है कि जब कोई मन्नत पूरी ना हो तो हम किसी दरगाह पे, हम अल्लाह के किसी घर पे नंगे पैरों जाते हैं कि अल्लाह हमारी इस तरीके से जो काम करने हैं हमारी दुआ को कबूल कर ले। हम आपके पास, मैं नंगे पैरों अपने साथियों के साथ आपके पास इसलिए आया हूं कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए। मैं आपकी लीडरी नहीं कर सकता, मैं आपकी रहबरी रहनुमाई नहीं कर सकता, आप हमारे लीडर हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आप इल्मी लिहाज से आगे हैं, आप हर लिहाज में आगे हैं, आप हमारी बात कीजिए, आप हमें लीड कीजिए और हमें कान से पकड़ के जहां पे गलती करते हैं रोकिए। एक और अहम बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कठुआ के अंदर दोदी गुजर बरादरी जो है, उनकी मलकियत जमीनों पे कब्जे करके कुछ मंत्रियों के फार्म हाउस चल रहे हैं। कठुआ का डीपीएस गुजरों की मलकियत जमीन पे है भाइयों, आधी सरकारी लैंड पे है भाइयों, और इल्जाम फिर आप पे है कि आप लैंड ग्रैबर हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कि हम जो है वायलेंस पे नहीं उतरे। अगर वायलेंस पे उतरते तो हमारे हाथ में कुछ और होता, हमारे जूते नहीं उतर जाते। हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, और अपनी आवाज पुंछ और रजौरी के लोगों की वसातत से सरकार तक पहुंचाने की आप लोगों से गुजारिश करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, लाल सिंह जो कि हमारे कम्युनिटी के और मुसलमानों के खिलाफ है, उसके बाद हमने ये गुजारिश की आप उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि सीधा और सीधा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कलमदान वापस ले लीजिए, उसे वहां से हटाइए। तीसरी चीज कि देखिए, हमारी मलकियत जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, वो हमें छोड़ दिए जाए। हमारी मजबी और जाती जमीनों पे काबिज जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और एक चीज और, जम्मू के अंदर जेडीए के नाम से, जम्मू के अंदर फॉरेस्ट के नाम से, जम्मू के अंदर फ्लड कंट्रोल के नाम से, जम्मू के अंदर इरिगेशन के नाम पे सिलेक्टिव एविक्शन करी जा रही है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि उन सारे ऑफिशियल्स पे कानूनी कार्रवाई हो। और आखिर में हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे नौजवान भाइयों ने हमारा साथ दिया है, मैं ये चाहता हूं पूरी टीम की तरफ से कि रजौरी की आवाम हमारी रहनुमाई करे, हमें आगे का रास्ता भी दिखाए, हमारा साथ भी दे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, इस भरे चौक में हम कोई सियासी पार्टी नहीं है,
अगर हम सियासी पार्टी होते तो शायद किसी अच्छे जगह पे प्रोग्राम करके आप लोगों को खाना भी खिलाते, लेकिन हमारी खुद की ये कंडीशन है कि आप सारे लोगों से कलेक्शन कर करके हम रास्ते की गाड़ियों का किराया चला रहे हैं। साथियों, मैं ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ना सोचें या कोई ये इल्जाम ना लगा दे कि ये जाने के लिए इनके पास ताकत कहां से आई, इनके पास सकत कहां से आई। भाइयों, आप सारे लोगों से हम कलेक्शन करते हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जहाँ के हमारे गुफ्तार साहब और बाकी साथी हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जानी और माली हमारा तहफ्फुज़ किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं साथियों कि जिस तरह से पूरी दुनिया का मुसलमान अर्बन कंट्री की तरफ बड़ी तरसी हुई निगाहों से देखता है, ठीक उसी तरह से सांबा से तालिब हुसैन बड़ी तरसी हुई निगाहों से अपने रजौरी के एक भाई को देखता है, अपने पुंछ के एक भाई को देखता है कि वो मेरी मदद के लिए उठेगा। और आप लोगों ने यह साबित किया है। जब हम लाल सिंह के घर के बाहर भेड़ और बकरियां लेके गए, मैं, गुफ्तार साहब और खटाना साहब और बाकी साथी, उस वक्त जब हम अरेस्ट हुए तो रजौरी में सबसे पहली आवाज उठी, आप सलाम के काबिल। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करके इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि इंशाअल्लाह हमने जो करना है वो आपके सामने है, लेकिन उम्मीद आपसे ये रखी जा रही है कि आप लोग हमारी रहनुमाई करेंगे। हमने ये भी डिसाइड किया है, 2 तारीख को असेंबली लग रही है। अगर असेंबली के अंदर हमारे मसलों का जायज तरीके से हल नहीं होता तो हम फिर आकर मजबूर होके असेंबली के बाहर, सेक्रेटरीट के बाहर अपने जिस्म पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। हमने ये बहुत पहले से कह दिया है और इंशाअल्लाह अजीज हम जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। और मैं आखिर में फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारा साथ दिया जाए फॉरेस्ट राइट एक्ट को पास करवाने में। एक चीज, फॉरेस्ट राइट एक्ट किसी कौम के खिलाफ नहीं है भाई। फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी दुनिया के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आने से जंगल खत्म नहीं हो जाते। फॉरेस्ट राइट एक्ट आने से जंगल बचेंगे। कैसे बचेंगे? हिंदुस्तान के कानून का द एनवायरमेंटल एक्ट, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये सारे एक्ट कहते हैं कि अगर आपको जंगलों को बचाना है तो खाना बदोश तबका जो है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, उन सब लोगों को जंगलों में रखो। देखो, जंगलों से खाना बदोशों को बाहर खदेड़ा जा रहा है और जो फॉरेस्ट के स्मगलर्स हैं उनके साथ ठेके करके आज के चंद सियासी लोग जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। यह लड़ाई, एक और बात बता देना चाहता हूँ, यह लड़ाई गुजरों की लड़ाई नहीं है। कतई मत सोचिए कि यह सिर्फ गुजरों की लड़ाई है। यह लड़ाई मुसलमानों की भी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की भी नहीं है। यह लड़ाई हिंदुस्तान को, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क माना जाता है, उसको बचाने की लड़ाई है। जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, उसकी साख को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गांधी जी ने 1947 के वक्त उम्मीद की एक किरण देखी थी, उस किरण को बचाने की जरूरत है भाइयों। इसलिए हम किसी कौम या तबका के खिलाफ नहीं है, हम एक मजलूम की तरह अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग जिस तरह से पहले हमारा साथ देते रहे हैं, ठीक उसी तरह से आगे भी साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।